Hello student, welcome to my computer classes. I am Tarun Sharma. In this video I will discuss about chapter 4 in subject computer class 10th. In this video we will explain the text of chapter 4 and some topics. Okay. First, introduction. HTML provides us with a rich variety of elements apart from the array of text formatting elements that you have just studied. And it provides a set of tools that help you to insert images into your document to make it more appealing. In addition, you can also add tables. That means in this chapter we will discuss a first as image tag and second A. A tag is stand for anchor tag. Okay. Suppose that if you create a web page, then you need to insert an image in your web page. How can do it? We can do it with the help of image tag. What is the image tag and how can use it, and what is the attributes of image tag? So let us discuss our first image tag. Image tag is used to insert and display image on the web page. क्लियर है? इसके यूज़ हम अपने जो वेब पेजेस होता है उसमें इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके. जैसे जो हमें अपने वेब पेज या वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, उसमें जो इमेजेस हमें शो करनी है, हम इसका यूज़ करके उसे इमेज को वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे वो इमेज हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगी. ओके. डन. एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट. SRC, ALT, align, height, width, border and so on. Let us discuss one by one and next. Okay. Second is A. A is the anchor tag that is used to for external and internal linking of web pages. If you want to connect two web pages together, then use this linking. Okay. The attributes of anchor tag is href and title. These are two attributes. Next is inserting and displaying image. How can insert an image and display image? Web browser generally support our image files that are in GIF or XBMP format, but most popular web browsers use the popular JPEG or JPG format. JPG stand for Joint Picture Expert Group. Other supported files type can also be used TIF, PNG. Simply we can say that this is the type of file formats that is supported by the web browser. When you insert an image in web browser, then use this format to help it. Okay. हमें जो फॉर्मेट्स हैं हमारे, इनका यूज़ करते हैं. जैसे हम कोई इमेज इंसर्ट करेंगे, उसका सिंटैक्स अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा, नीचे बिलो आपको दे रखा है. और उसमें ये हम जो फॉर्मेट्स आपको मैंने अभी बताए हैं, इनका हम यूज़ करेंगे फॉर इंसर्ट अ इमेज. क्लियर है? सिंपल. लेट अस डिस्कस द सिंटैक्स ऑफ इमेजेस. दिस लाइन. ओके. सिंटैक्स ऑफ इमेज. राइट द टैग IMG and attribute SRC. SRC is used, it is specify the URL of the image to be displayed on the browser. क्लियर है? कोई भी जो हमारी जो वेब ब्राउज़र पे जो भी हम वेब पेज पे इमेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, उसका जो URL एड्रेस होता है उसे स्पेसिफाई करता है, उसे लोकेशन को फाइंड करता है. क्लियर है? ठीक है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने कोई इमेज इंसर्ट की है. इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, दिस आपकी बुक में होगी e:books/star.bmp. तो दिस इज़ द BMP इज़ द फाइल फॉर्मेट, जो कि मैं ऊपर डिस्कस किया था. JPG, GIF, these are the file formats, and BMP also file format. Or e::book and star, this is the file location. Okay. The first line example IMG SRC. This first line will display the image lying in your current directory. करंट डायरेक्टरी में जैसे कि एक फोल्डर में मेरे पास, जिसमें मैंने नोटपैड की कोडिंग की है,
उसी नोटपैड के मैंने इमेजेस को पेस्ट कर रखा है, तो मुझे वहाँ पे डायरेक्टरी देने की कोई रिक्वायर नहीं होती। डायरेक्ट इमेज का नेम लिखूँगा और इमेज का फाइल फॉर्मेट लगाऊंगा, जैसे कि .gif.png, देन मैं इसे यूज़ करूँगा तो वेब पेज में मेरी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। सपोज़ करो मेरी जो इमेज है वो मेरे अदर डायरेक्ट ई ड्राइव में या ऐप ड्राइव में अलग सेव है, तो उसे के लिए मुझे उसे इमेज पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप उसमें क्या, जैसे कि सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक, देन गो टू प्रॉपर्टीज़, सेलेक्ट प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसमें इमेज की लोकेशन आती है, इमेज की लोकेशन आएगी। आफ्टर दैट लोकेशन को आप सेलेक्ट करेंगे और लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद आप पेस्ट कर देंगे, देन .bmp या GIF फॉर्मेट। क्लियर है? ओके, डन। नेक्स्ट पेज दिस, attributes. फर्स्ट इज द SRC। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इज स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज दैट टू बी डिस्प्ले ऑन द वेब ब्राउज़र। जो वेब ब्राउज़र पे हमारे इमेज होते हैं उसके लोकेशन को फाइंड करता है। ऑल्ट, गुड। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट में जो मैंने टेक्स्ट राइट किया है उसे डिस्प्ले करेगा अल्टरनेट टेक्स्ट इफ़ द इमेज इज़ नॉट प्रेजेंट और द ब्राउज़र कैन नॉट डिस्प्ले द इमेज। ओके, दैट मीन्स वेब ब्राउज़र इमेज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस पर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। ओके, तो एक अल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पर शो हो जाएगा। जो भी आप इसमें अल्ट में जो भी देते हो, जैसे कि मैंने अल्ट में दे दिया दिस इज़ द बुक इमेज, जैसे मैंने बुक की इमेज लगाई है, तो वहाँ पर बुक की अगर इमेज शो नहीं होती है तो वहाँ पर वो मैसेज शो हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज द अलाइन एट्रीब्यूट। it align the image as value specified like center, left, right, middle, top and others। जैसे ही आपको इमेज को सेंटर में यूज़ करना है तो अलाइन इक्वल टू सेंटर कीजिए, लेफ्ट में करना है तो अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, राइट, अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड। क्लियर है? नेक्स्ट इज द हाइट। इफ़ यू वांट टू चेंज, इफ़ यू वांट टू सेट द हाइट ऑफ द इमेज देन यूज़ इन पिक्सल्स। पिक्सल्स में यूज़ कर सकते हो, उसकी हाइट आपको कितनी रखनी है इमेज की और कितनी लार्ज रखनी है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। एंड सेम एज द विड्थ, टू सेट द विड्थ इन पिक्सल ऑफ द इमेजेस। एंड लास्ट इज द बॉर्डर, टू सेट द बॉर्डर फॉर द इमेज। सपोज दैट आई नीड टू border around images, तो then use the border attribute and write the border values। जैसे सपोज करो मुझे इमेजेस के एक बॉर्डर क्रिएट करना है उसके पास, तो मैंने उसमें बॉर्डर में जाके बॉर्डर की एक वैल्यू दे दी और क्या क्या उसकी वैल्यू को सेट कर दिया। बॉर्डर इक्वल टू 4 3 2, तो वो बॉर्डर उसके अराउंड चारों तरफ हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अनदर एट्रीब्यूट इज टाइटल। आपकी बुक में नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक और इसका एट्रीब्यूट होता है टाइटल। टाइटल का क्या यूज़ होता है? दिस एट्रीब्यूट डिस्प्ले अ टूल टिप व्हेन यू मूव अ कर्सर ओवर द इमेज। नोट फॉर एग्जांपल इमेज, मैं सपोज कीजिए जैसे मैं इमेज पे माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो उस पर एक मैसेज शो हो माउस के कर्सर पे, तो देन यूज टाइटल एट्रीब्यूट। ओके, इन दिस बुक यू सी द example is that write an HTML code to display an image along with text on a web page। For solution is that HTML head title में हमने इमेज लिखा, देन हेड को क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट बॉडी टैग में आप p टैग का यूज़ किया है। पैराग्राफ में हमने S3 में लिखा है एन इमेज, और इमेज में हमने SRC दिया है। SRC इक्वल टू start.bmp। bmp is the file format and the text, or that br tag is used for break the line। can you see these birds and image SRC, उसमें मैंने लोकेशन दिया है दिस, और इसमें एग्जाम्पल में, और ये पूरा आपका जो एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। देन क्लोज द बॉडी एंड HTML टैग।
ओके, तो यू सी दिस डायग्राम, दिस ये जो क्या है, यहाँ पर इमेज शो नहीं हो रही है। ओके, तो क्या हुआ, एन इमेज, इमेज के बाद इन द टेक्स्ट डॉट स्टार, जो इस छोटे से स्टार आ रहा है, और सेकंड वाली जो इमेज थी हमारी वो ये आपकी शो हो रही है। डन, यूजिंग अल्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज द अल्ट एट्रीब्यूट, उसका भी एग्जाम्पल है, आप ये एग्जाम्पल रीड कर सकते हो बुक से, इजी है। अल्ट का मैंने आपको यूज़ बता दिया है। ओके, नेक्स्ट इज द अलाइन इमेजेस यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट। इसके थ्रू मैं जो मेरी इमेजेस है उसे मैं सेट कर सकता हूँ। लेफ्ट टू राइट, राइट टू टॉप टू बॉटम। ओके, क्लियर है। मिडिल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। सपोज कीजिए मुझे राइट में इमेजेस को शिफ्ट करना है, या राइट में मेरे को इमेजेस को लेके आना है, तो देन मैं यूज़ करूँगा राइट अलाइनमेंट। लेफ्ट में यूज़ करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेम एज मिडिल एंड सेंटर। ओके, डन। क्रिएटिंग इमेजेस, इसमें इमेज क्रिएट कर सकते हैं। हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। आप इमेज की जो हाइट है उसे भी सेट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो एक फ्लावर्स है उसकी हाइट मैंने डिफरेंट इमेजेस में सेट हो रही है। इसमें हाइट 100 है, उसमें हाइट 200, एंड नेक्स्ट इमेजेस में 300, एंड सेम वेट 50 है, और नेक्स्ट में वेट हमारी 150, एंड नेक्स्ट वेट इज 250। ओके, डन, क्लियर है ये। ओके, सेटिंग इमेज बॉर्डर विद बॉर्डर एट्रीब्यूट। जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है उसके थ्रू हम जो ये आप देख रहे हो इमेजेस में, जो एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें एक इमेज का जो बॉर्डर है 3 दे रखा है, दिस। ओके, तो जो इमेजेस है हमारी, इसके ये और पास जो बॉर्डर आ रहा है दिस वन, ये कितना है 3। जो बॉर्डर की वैल्यू आपने दी है, तो इमेजेस के 2 टाइप्स बॉर्डर हो गया। ओके, तो सिंपली यूज दिस टैग इमेजेस। इसमें आपके कैसे हमें इमेज को क्रिएट करना है, कैसे इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, और इमेज में हम कैसे अल्ट का यूज़ करें, अल्ट एट्रीब्यूट का, हाइट का, विड्थ, बॉर्डर्स, उसका यूज़ कीजिए। ओके, और आफ्टर डेट ऑन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस and explain the types of linking, how many types of linking, how can use this. So I will stop here. Thanks to all students for watch this video. Okay, please like this and subscribe.